السلام علیکم. ٹاک ٹوڈے ود سلمان خان میں خوش آمدید. آج ہم جس شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں وہ لاہور کی ایک بہت ہی مشہور مارکیٹ حفیظ سینٹر کے صدر ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حفیظ سینٹر جو کہ لاہور میں الیکٹرانکس میں خاص طور پر اگر بات کی جائے لیپ ٹاپس اور موبائل فون کا ایک ہب سمجھا جاتا ہے, یہ مارکیٹ کچھ دن پہلے اس کو آگ لگی اور وہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بڑی ہو گئی کہ اس نے سینکڑوں دکانیں جو ہیں وہ اپنی لپیٹ میں لے لی. بہت بڑی تعداد میں تاجر برادری جو ہے جو یہاں کام کرتی تھی وہ ایک ہی رات میں ایک ہی دن میں سڑکوں پر آ گئی اور ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے. حفیظ سینٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بہت پریشان ہیں. ایک جانب کرونا نے کاروباری شخصیات کا جو ہے وہ جینا محال کیا تھا, دوسری جانب اس طرح کی جو آفت سامنے آئی ہے اس سے بلا شبہ ان کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے. اب دیکھنا یہ جاننا یہ چاہیں گے آج کے پروگرام میں کہ حفیظ سینٹر کتنا بزنس کتنا ریونیو جو ہے وہ دے رہا تھا, کس حد تک نقصان ہوا, حکومت کیا ازالہ ان کا کرنے جا رہی ہے, پلانز کیا ہیں, غلطی کس کی تھی, کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے. ان تمام تر چیزوں کا آج کے اس پروگرام میں ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف ہم حفیظ سینٹر کے صدر سے بات کریں گے بلکہ کچھ متاثرین سے بھی بات کریں گے جن کی دکانیں جو ہیں وہ جلی ہیں. جی ہاں, ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ملک کلیم صاحب, حفیظ سینٹر کے صدر ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. بلا شبہ پروگرام تو ہم آپ سے پہلے کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ افسوسناک سانحہ ہو گیا جس کی وجہ سے آج ہمیں سڑک پہ بیٹھ کے یہ پروگرام کرنا پڑا ہے اور ہم حفیظ سینٹر کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ آگ جب لگی اور اس کے بعد پھر کیا صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً 4 بجے آگ لگی ہے جی, رات 4 بجے, صبح 4 بجے. ٹھیک. اور اس کے بعد ہمارے گارڈز کو جو ہی پتہ چلا انہوں نے کوشش کی, کیونکہ فائر کے جو آلات ہیں ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے اور فائر ایکسٹنگوشرز جو تھے وہ انہوں نے چلائے لیکن وہ کچھ تو کام ان سے کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. جب ان سے وہ قابو نہیں پایا گیا تو پھر ان لوگوں نے ریسکیو 1122 کو کال کی. پھر وہ لوگ ان ٹائم آ بھی گئے, یہ نہیں کہ وہ نہیں آئے, 7 سے 8 منٹ کی کال پہ وہ پہنچ بھی گئے 10 منٹ کے اندر. لیکن آنے کے بعد ریسکیو جو ان کی ایکٹیویٹی تھی, جو پرفارمنس تھی, شاید ان کو گائیڈ لائن دینے والا کوئی بندہ نہیں تھا, ان کے ساتھ ان کا کوئی لیڈ کرنے والا بندہ نہیں تھا. کیونکہ جب وہ پہنچے اس وقت ایک دکان کے اندر آگ لگی ہوئی, لیکن جب ریسکیو والے اس پلازے کو چھوڑ کے باہر نکلے ہیں اس وقت 209 دکانیں جل کے خاک ہو چکی. 209 دکانیں. ویسے ٹوٹل کتنی دکانیں ہیں اس حفیظ سینٹر کی؟ تقریباً 1000 کے قریب. اچھا, کتنا عرصہ ہو گیا حفیظ سینٹر کی اس مارکیٹ کو, اس کی لیگیسی کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا, اور کب سے یہ ایک ہب ہے یہاں پر موبائلز کا اور لیپ ٹاپس کا؟ بیسکلی یہ کمپیوٹر مارکیٹ تھی, موبائل والے بعد میں آئے. تو اس جگہ پہ جو یہ پلازے نے جب اس کے اوپر بوم آیا وہ آیا کمپیوٹر کی وجہ سے, پھر موبائل کی وجہ سے. اور موبائل کا جو بوم تھا وہ ماشاءاللہ اتنا زیادہ آیا کہ وہ نظر لگ گئی. میں تو یہی کہوں گا اس پلازے کو نظر لگ گئی. اور لاہور کا خوبصورت ترین یہ پلازا تھا, حالانکہ یہ اتنی پرانی عمارت بنی ہوئی کوئی بھی لاہور میں ایسی نہیں ہے جو اتنی خوبصورت لگے, تو اس کو نظر لگ گئی. تو یہ پہلا انسیڈنٹ ہے یا اس سے پہلے بھی کچھ ٹائپ کا کوئی واقعہ ہوا؟ پہلے بھی جی ایک انسیڈنٹ ہو چکا ہے لیکن وہ کنٹرول کر لیا گیا تھا, وہ انہوں نے آگ کو کنٹرول کر لیا گیا تھا. اور اس میں بھی ہمیں جو اعتراض ہے 1122 سے وہ یہ ہے کہ ریسکیو کی جب گاڑیاں آئی ہیں ہم ان کو 12 دفعہ کہتے رہے کہ آپ ایئرپورٹ سے, ہم نے لاسٹ ٹائم ایئرپورٹ پہ ریکویسٹ کر کے وہاں سے گاڑیاں منگوائی تھی. ان کے پاس فوم تھا جو ہی وہ اس کو پائپ کے ذریعے ان کے اوپر پھینکتے تھے تو وہ آگ کو سلا دیتا تھا. ٹھیک ہے. یہ پانی تھا, اس سے شاید وہ کہہ رہے تھے ہم نے فوم اس میں شامل کیا ہوا ہے لیکن وہ نظر بھی نہیں ہمیں آیا. اور اگر فوم تھا تو وہ پھر آگ کیوں پھیلی اتنی, ایک دکان سے 210 دکانوں تک کیسے چلی گئی, یہ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہے ہیں ہمیں. اچھا, نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ فائر بریگیڈ کے عملے کی نااہلی یا ہمارے پاس جو ہے اکوپمنٹ کی کمی کی وجہ سے یہ سارا کا سارا اتنا بڑا سانحہ بن گیا؟
کیونکہ اس میں ایک موقف یہ بھی معذرت کے ساتھ آتا ہے کہ بہت لیٹ ان کو بتایا گیا, پہلے خود ہی کوشش کرتا رہا آپ لوگوں کا جی عملہ. میں نے تو بتایا کہ ہمارے عملے نے خود کوشش کی ہے, لیکن جب ان سے وہ کنٹرول نہیں ہوا, انہوں نے بتایا, لیکن جب فائر بریگیڈ آیا ہے تب تک آگ کوئی پلازے میں پھیل نہیں چکی تھی, تب بھی ایک ہی دکان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی. میں تو بتا رہا ہوں, اس کی فوٹیج بھی موجود ہے. جب 1122 والے آئے اس وقت ایک دکان کے اندر آگ, ٹھیک, تو مینیج ان سے نہیں ہو سکا, ان کی گاڑیوں میں پانی نہیں تھا. اچھا, اور وہ ایک گاڑی 6 سے 7 منٹ میں ٹوٹل پانی شاور کر دیتی ہے, ٹھیک, اور دوسری گاڑی کے انتظار میں ان کو 15 سے 20 منٹ تک انتظار کرنا پڑا. اس لیے تھوڑی سی یعنی کہ embarrassing آپ بات کہہ لیجئے کہ فائر بریگیڈ کی نااہلی یا اکوپمنٹ کی کمی کی وجہ سے اتنا بڑا میں سامنا. نااہلی نہیں کہوں گا, کیونکہ اگر نااہل ہوتے تو شاید پورا پلازا ہی جل جاتا. محنت انہوں نے بہت کی, لیکن ان کو پیچھے سے جو کمک پہنچنی تھی وہ بر وقت نہیں پہنچ سکی. اگر ان کو بر وقت پانی کی ترسیل جاری رہتی, واٹر ٹینک جس طرح بعد میں انہوں نے مینیج کیے, ہم نے بیریا فون کیا, ہم نے نیوی والوں کو, آرمی والوں کو, ہم نے پھر وہ بھی کرتے ہوں گے, لیکن ہم بھی کرتے رہے. اور اس کے بعد جب پانی آ گیا, ماشاءاللہ وافر پانی آ گیا, لیکن تب تک آگ پھیل چکی تھی, کنٹرول سے باہر تھی. جو اسکائی لفٹ تھی ان کی وہ بعد میں آئی, تو اس تب تک کام کافی خراب ہو چکا ہے. یہ اس سے بھی اب زیادہ بڑی ہائی رائز بن رہی ہے, یہاں تک پانی پہنچانا مشکل ہو رہا تھا فائر بریگیڈ کو. یہ بلا شبہ ایک سوالیہ نشان ہے, اور ہر دفعہ آگ لگتی ہے حکومت کے سامنے اٹھایا جاتا ہے معاملہ, پر افسوس کی بات ہے کہ اس پہ اس طرح کام نہیں ہو پاتا. اچھا, جاننا میں آپ سے چاہوں گا, اتنا بڑا پلازا, 209 دکانیں جو ہیں وہ جل گئیں, کتنا نقصان ہوا ایسٹیمیٹڈ؟ تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپے کے. 1.5 سے 2 ارب. جی ہاں, 209 دکانوں کے اندر سامان. آلموسٹ. باقی دکانیں بالکل بچ گئی کیونکہ پانی کا استعمال کیا گیا, اور پھر اصل میں یہ وہ نقصان میں نے آپ کو بتایا جو فزیکلی نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اب جو پانی کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکی ہے, جس طرح پانی انہوں نے کچھ دکانوں کے اندر سامان ابھی موجود ہے, وہ دکانیں سیف بھی ہیں, لیکن اس کے اندر پانی اتنا جا چکا ہے کہ جب وہ کھولیں گے تو پتہ لگے گا کہ ان کی یہ کیا مطلب کنڈیشن. نقصان کا تخمینہ بڑھ بھی سکتا ہے یار. ہاں جی, بڑھ بھی سکتا ہے. ٹھیک. اچھا, یہ بتائیے گا, دنیا میں اگر دیکھا جائے, خاص طور پر لاہور کے اندر دیکھ لیں, اور بھی بہت سے پلازے ہیں. آپ کا پلازا تو خاص طور پہ بہت بڑا بزنس جنریٹ کر رہا تھا, بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں کاروبار یہاں پہ کر رہے تھے. وہاں پر یہ سب چیزیں بھی سب کے سامنے ہیں کہ فائر بریگیڈ کے پاس جو قوت کی کمی ہوتی ہے, آپ کہہ لیجیے لاجسٹیکل سپورٹ نہیں ہے, تو وہ اپنا کوئی انتظام کر کے رکھتے ہیں. آپ یہ سمجھتے کہ اتنا بڑا مطلب پلازا, یہاں پر وہ انتظامات ہونے چاہیے تھے جو نہیں تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا خیال ہے صرف حفیظ سینٹر نہیں, پاکستان کے اندر جتنی بھی بلڈنگز ہیں, جتنے بھی پلازے ہیں, جتنے بھی مالز ہیں, شاید ہی کسی نے سیکیورٹی میئرز کو پورا کیا ہو, شاید ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں آگ لگتی ہے, بلڈنگز جل بھی جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دبئی جیسے ملک کے اندر بھی کچھ پلازے ہیں جس پہ آگ لگی اور پورے کا پورا پلازا جل گیا. کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کے اندر تو بڑی سختی سے جب تک وہ سیکیورٹی میئرز کو پورا نہ کریں وہ تو اجازت ہی نہیں دیتے. یہ لیکن مس ایپ کہیں بھی ہو سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے ریسکیو والے لوگ, جس کو میں یہ سمجھتا ہوں, اب یہ مین بولیوارڈ کو انہوں نے ماڈل روڈ قرار دے دیا, بڑی خوش آئند بات ہے, خوبصورت روڈ بنے گی, پلازے بھی خوبصورت ہے, ہائی رائز بلڈنگ کی اجازت گورنمنٹ نے دے دی, جو کہ خوش آئند اقدام ہے, پوری دنیا میں بن رہی ہے, پاکستان میں بننی چاہیے, پاکستان کا بھی نام ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے اور سجیشن ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ جب بن رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ویسے اکوپمنٹ بھی چاہیے, آپ کو اس طرح کا انتظام بھی کرنا چاہیے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کل کو کسی ہائی رائز بلڈنگ میں ایسا واقعہ پیش آ جائے تو گورنمنٹ اس کو ہینڈل کر سکے. ٹھیک. اچھا, آپ تو کیونکہ صدر ہیں اور آپ کو سب کی آواز اٹھانی ہے, بٹ یہاں پہ بہت سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ لوگ بھی ہیں ہمارے ساتھ, ایک تاجر بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہاں وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे हफीज़ सेंटर के ताजरों से। एक बहुत अफसोसनाक सानिया हुआ और बहुत बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो मुतासिर हुई है इससे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिटी ग्रुप के सदर हैं हफीज़ सेंटर के और डायरेक्टली अफेक्टेड जो ताजर हैं। शाहिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बिलाशुबा एक बड़ा सख्त वक्त है आप लोगों के लिए। आपकी दुकान भी इसमें जली है? नहीं, हमारी वाली साइड तो अल्लाह के फजल से महफूज हो गई है, लेकिन आप कम्युनिटी के साथ आए खड़े। लेकिन हम जिनका इमलाक जल चुकी है वो मुतासरीन में है, जिनका नहीं कुछ जला वो मुतासरीन में भी है और वेंटिलेटर पे है। अच्छा। ना हम जिंदों में ना मरों में। तबाहकुन शक्ल जो प्लाजे की नज़र आ रही है, ये कुछ दिन पहले अपनी दोबारा रौनकों से आबाद था, आज अपना मंजर बयान कर रहा है। बिलाशुबा ऐसा ही है। पर डे क्या मतलब इसका बिजनेस रेवेन्यू था हफीज़ सेंटर का जो अब अफेक्ट हुआ है और बंद है ये हफीज़ सेंटर? देखिए, मोबाइल और आईटी को मिलाकर ना, इसमें आईटी से रिलेटेड लैपटॉप्स, टैब्स, मोबाइल को तकरीबन कोई 40 से 50 हज़ार ख़ानदान जो इससे रोज़गार कमाते थे। अच्छा। लोगों का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी यहाँ पे जो आती थी, ट्रैफिक वगैरह, तकरीबन कोई मोर देन 50-60,000 पर्सनस डेली के विजिटर्स होते थे। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सुबह 11 बजे मार्केट अपनी पूरे जोबन से खुलती थी, ऑनवर्ड मोबाइल मार्केट 12 बजे तक भी ओपन होती थी, आईटी वाले भी रहते थे। हर बंदा, ख्वाह वो स्टॉक होल्डर है, दुकानदार है, अच्छा रोज़गार कमा के जाता था। मतलब बड़े ताजिर से लेके छोटे जो है एवरीवन इफेक्टेड फॉर दिस ब्लडी रैश। तो अब क्या आपको क्या बताया जा रहा है? क्योंकि आपने बताया ना कि आपकी वैसे तो दुकान नहीं जली, लेकिन बिलाशुबा मार्केट बंद है, तो आप वेंटिलेटर पे इस वक्त क्या बताया जा रहा है? कब तक ये प्लाजा जो है इसको दोबारा रेनोवेट कर लेंगे? कब इसकी रौनकें दोबारा बहाल हो जाएंगी? इस पर मुसद्दिका तो अभी ख़बर कोई नहीं है, लेकिन जो सरकारी इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तामन कर रहे हैं हमसे। अच्छा। इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि फायर ब्रिगेड से लेकर वासा, LDA, पुलिस के महकमे तक सब ने तावन किया है, ताकि उमर शेख साहब खुद यहाँ पे आए। कुछ ऐसे शरपसंद लोग घुस गए थे जो चोरी की नीयत से गए थे। उमर शेख DPO साहब ने, यानी कि CPO पुलिस का अमला हो, उन्होंने भी बहुत तावन किया, बहुत तावन किया है, वो अच्छा तावन कर रहे हैं और आपको उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपकी अदाला हो जाएगा। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जल्द से अपने ताजर अपने प्लाजे की रौनकें बहाल करें। ठीक, चलें और भी ताजरों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मज़ीद जो है मुतालबात हैं हुकूमत से, किस तरह ये चाह रहे हैं कि इस अजाले को हल करें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इत्तेहाद ग्रुप के चेयरमैन हैं मियां अतीकुर रहमान और फैक्ट्रीज़ में से हैं बिलाशुबा। इस वक्त तो तमाम लोग ही मुतासर हैं। मियां अतीक साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है ये तो प्लाजा बंद है, गवर्नमेंट आपको क्या बता रही है? क्योंकि कुछ लोग जो है जिनकी तो दुकानें जली हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस तरह अभी हमें शाहिद साहब बता रहे थे कि वो वेंटिलेटर पे हैं, उनकी दुकानें नहीं जली, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अभी क्या अंदर की सूरत हाल है। और उन्हें ये भी नहीं पता, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर काम होता था, पैसे कमाते थे, घर लेके आते थे। अब ये कितना, एक तो मुझे बताइएगा पर डे का रेवेन्यू क्या था और कितना इससे नुकसान हो रहा है आप कारोबारी लोगों को जितने रोज़ ये बंद रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज वज़ीर आला कंप्लेन सेल के जो चेयरमैन है जनाब जुबैर ख़ान नियाज़ी साहब, वो हमारी एक कॉल पर आए हैं। उन्होंने आगे हमें यकीन दहानी कराई है कि हमारे प्लाजे का जो ये जो मसला है ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रख के इसको मतलब कि दिनों के अंदर इंशाल्लाह हम इसको मतलब कि हल करेंगे। जो एक कमेटी तश्कील दे दी है उसके साथ वो बात भी करेंगे। अभी उन्होंने हमें इस चीज़ की भी यकीन दहानी कराई है कि वो जो LDA के जो चीफ़ हैं, जो चेयरमैन हैं, उनसे वो जाके खुद गुफ्तगू करेंगे और उसकी जितनी भी रिपोर्ट है वो CM साहब को देंगे। आपने जो दूसरा सवाल किया कि जी इसका जो नुकसान है, नुकसान बिल्कुल है। कईयों की जल गई हैं दुकानें और कईयों की बह गई हैं, क्योंकि अगर कईयों की अगर जली नहीं है तो पानी की वजह से बाकी प्लाजे की तमाम दुकानों में, अगर कोई ये कहता है ना कि प्लाजा 30% जला है और 70% सेव है, ऐसा नहीं है। जला तो 30% ठीक है, लेकिन वो जो 70% जो बच गया है ना, क्योंकि आपको पता है ये IIT की मार्केट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसको पानी जब पड़ जाता है तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है।
100% जो दुकानें हैं उन सब दुकानों के अंदर पानी चला गया है। वो मोबाइल्स की शॉप हैं, वो लैपटॉप की शॉप हैं, वो किसी भी नेटवर्किंग की जो कोई भी दुकान है, पानी सब में गया है, सब इफेक्टेड है। अब एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि प्लाजा 70% सेफ है, बिल्कुल सेफ है, लेकिन पानी से तो जो नुकसान हो गया दुकानदारों का, वो भी तो नुकसान है। बिल्कुल है। तो अब क्या गवर्नमेंट क्या आपसे बात कर रही है, क्या कम्युनिकेट कर रही है, और आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं? हमारी सबसे पहली डिमांड ये है कि प्रायोरिटीज़ पे डे बाय डे हमें इंफॉर्मेशन दी जाए, और चंद दिनों में, ना कि हफ्तों में और महीनों में, चंद दिनों में हमें हमारा प्लाजा खोलने की इजाज़त दी जाए। जब हम इस प्लाजे के अंदर जाएंगे ये गंद बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस टाइम लोगों को ये भी अच्छा मैसेज नहीं जा रहा कि हफीज सेंटर बंद पड़ा। नहीं तो ये जो इस हाल में किस तरह खोलेंगे आप? यहाँ पर तो सारे के सारा यही तो कह रहे हैं कि आप मतलब अपनी मदद आपके तहत काम करने के लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं, हम करना चाहते हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगना चाहते। हाँ, गवर्नमेंट ने जो हमें कंपलसेट करना है वो बिल्कुल करे, बिल्कुल करे, हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमें इतनी तो इजाज़त दे दें, जाकर हम अपनी दुकानों को देखें, सामान को देखें, गंद को बाहर निकालें, इसको थोड़ी बहुत अभी आपको बिल्कुल एक्सेस नहीं दी जा रही? बिल्कुल एक्सेस नहीं दी जा रही, किसी भी वाले से कोई एक्सेस नहीं हमारे पास। अच्छा, ये हमारा ही प्लाजा है, हमारी ही दुकानें, और हम उनके अंदर जा सकते। इतना बड़ा मतलब हफीज सेंटर और इतनी बड़ी यहाँ से कारोबार होता था, और आप जैसे कारोबारी शख्सियात हैं, फिर एक ग्रुप नहीं मुतादिद ग्रुप्स हैं यहाँ पर। जी जी। तो आप लोगों ने खुद कोई एहतमाम नहीं किया था कि, और ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक्स का जहाँ पर काम हो, आपको पता है बैटरी वैसी फट जाती है, किसी भी तरीके से ये बड़ा फ्रजाइल से सारी एनवायरनमेंट होती है। जी जी। तो कोई प्लान नहीं किया था कोई, जैसा कि आजकल बड़े बड़े प्लाजों के अंदर पूरा प्रॉपर उन्होंने अपनी तैयारी की होती है? नहीं, बिल्कुल ये यहाँ पर भी था ऐसा। यहाँ पर आप समझते हैं कि कुछ नाअहली हफीज सेंटर की अपनी भी है? सर हो भी सकती है, वो उसको तो हम बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमारी सुप्रीम काउंसिल है, हम उसमें भी अपना इशू जो कुछ भी है हम अपने तौर पर देखेंगे, जो भी मामला हैं, लेकिन अभी हमारा ये फोकस नहीं है। ठीक है, हमारा मेन फोकस है हमें प्लाजा खोलने दिया जाए, हमें अंदर जाने दिया जाए अपनी दुकानों के अंदर। तो कैसे खोलने दिया जाए, क्योंकि एक जानिब तो प्लाजा जला है और ये बहुत पुराना बना हुआ 90 की दिहाई का। जी जी। तो अभी इसका कोई अप्रूवल हुआ है कि इसकी रेनोवेशन होगी? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो काम इन्होंने हफ्तों में और महीनों में करने हैं उनको दिनों पे ले जाएं, जल्द से जल्द। जितना देर नहीं खुलता कितना नुकसान होता जाएगा यहाँ के ताजरों को? माशाल्लाह आप, मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान जानता है हफीज सेंटर में डेली बेसिस पे कारोबार कितना होता है, करोड़ों का होता है, ये लाखों का होता है, या हज़ारों का होता है। इसका फैसला लोग भी कर लेंगे, आप भी कर लेंगे, आप सबको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस टाइम जो नुकसान हो रहा है, देखें जो हो गया सो हो गया, अब जितनी देर ये बंद रहेगा और नुकसान होगा, वो हमें बर्दाश्त नहीं। जो आना था अल्लाह ताला की तरफ से नुकसान होना था वो तो हो गया, अब हम कम से कम इसको चला कर दिनों पर लेके जाके इसको खोल के अपना कारोबार तो चलाएं। आप अभी तक मुतमईन है? हुकूमत कोऑपरेट कर रही है, बात सुन रही है? कोऑपरेट भी कर रही है, बात भी सुन रही है, लेकिन बहुत स्लो है। ठीक है, एक्सपेक्टेड आप क्या चाहते हैं, कब तक? एक हफ्ते के अंदर खोल दें, 2-4 दिनों में खोल दें, किस तरह? देखें मैं अगर आप मेरे से पूछें, मैं कहता हूँ जी घंटे बाद खोल दें, लेकिन सारा रियलिटी यही है, सारा प्रोसेस है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के जो काम हफ्तों का उनको दिनों पे ले दें। हमारे इस प्लाजे में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ताजर भी हैं जो डेली बेसिस पे कमाते हैं और जाके अपने बच्चों को खिलाते हैं। मैं 10 दिन आप यूनियन जो है को ख्याल रख रही है ऐसे लोगों का? जी इंशाल्लाह सबका ख्याल रख रही है और इंशाल्लाह रखेंगे भी। हम खुद चाहते हैं, हमारे इस प्लाजे में कई ग्रुप्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस एक पेज पे रहें कि हमने अपने प्लाजे को जल्द से जल्द खुलवाना है। ठीक, चलिए सुप्रीम काउंसिल की भी आपने बात की, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हफीज सेंटर की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हैं आमिर साहब, और इनकी अपनी दुकान जो है वो भी इसमें जली है और बहुत बड़ी तादाद में इनको नुकसान भी हुआ। आमिर साहब, बिलाशुबा बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। तो ये बताइएगा कि अब एक तो नुकसान आपका कितना हुआ और आप अब क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है, हुकूमत किस हद तक ताउन कर रही है, क्या मुतालबात हैं आपके? मेरा सर कोई 3-4 दिन पहले कंटेनर आया था जो मेरा 305 लाख रुपए 40 फीट का, वो सारे का सारा ही जल गया।
तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 22 लाख रुपया कैश पड़ा था वो भी जल गया। ये वाला मेरा ऑफिस था ये सामने, बस उसमें कुछ नेग्लिजेंस प्लाजे की यूनियन की भी थी, कोई 1122 पे भी वो सही तरीके से मैनेज नहीं हो सका। जैसे कि आग बुझाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके लिए फॉर्म दरकार होता है, पानी से तो ये मज़ीद भड़क उठती है। ठीक। खैर अब जो नुकसान होना था हो गया। अब तो हम सिर्फ एक ही मुतालबा करते हैं कि इस आग के ऊपर जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस लिया, इसके ऊपर जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने नोटिस लिया। अब ये उस्मान बुज़दार साहब का लाहौर में एक पहला इम्तिहान है मेरे ख्याल में। ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है उनकी हुकूमत में लाहौर में, और ये पहला उनका इम्तिहान है कि वो अब वसीम अकरम प्लस बन के दिखाएं। जो पीएम साहब का विजन है उसके मुताबिक अब पता चले कि ये वाकई वसीम अकरम प्लस है। आज हमारे आंसुओं का मुदावा करें, हमारे दुखों को आके देखें। हमारे 40,000 लोगों का इससे वाबस्ता है, उनका रिज़्क है, उनको कैसे लुटाना है उन्होंने। ये बुज़दार साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। उसके बाद हम कमर जवेद बाजवा साहब से भी अपील करते हैं, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। उन्होंने गाड़ियाँ भेजी, यहाँ पे रेंजर्स को भेजा, बड़ा हमारा ख्याल रखा। अब वो रियासत के बड़े हैं, हम उनसे अपील करते हैं रियासत माँ की तरह आज वो माँ बन के दिखाए। आप अपील तो कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि 12 करोड़ का आपका एक कंटेनर आया था। एक जो तहफ़्फ़ुज़ लोग जो उठा रहे हैं वो ये है कि क्या यहाँ पर जितने भी ताजिर थे वो सारा का सारा सामान जो है वो गवर्नमेंट की उसमें भी था, तभी आपका कोई अज़ाला भी किया जा सके गवर्नमेंट। नहीं तो हर बंदा कह सकता है जी मेरे इतने करोड़ का नुकसान हो गया, इतने करोड़ का, तो उसका कुछ आप लोगों ने मतलब। सर मैं तो कुछ मांग ही नहीं रहा ना, मैं तो क्लेम नहीं कर रहा ना कि मुझे कुछ दें, हमें सिर्फ प्लाजा खड़ा कर दें बस। ठीक, बाकी हम इंशाअल्लाह ताला खुद कर लेंगे। हम खुदा से मांगते हैं, वो देने वाला, वो बात तो आपकी सही है। ताजर मांगने वाला नहीं है, ताजर देने वाला है। आप सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हैं और तमाम लोग जिनसे भी मेरी बात हो रही है यूनियंस के बड़े हैं यहाँ के। आमतौर पर दुनिया के अंदर देखा जाता है इस तरह की जो मार्केट्स होती हैं वो इंश्योर्ड होती हैं, तो आप लोगों ने इतनी बड़ी मार्केट, इतना बड़ा बिजनेस, इसको इंश्योर्ड क्यों नहीं करवाया एक्चुअली? और आप इतने रिस्क के ऊपर सेंटर को वो इंश्योर्ड करते ही नहीं है बैंक्स, पता नहीं क्या वजह है। बहुत सारे दोस्तों ने कोशिश भी की लेकिन ये इंश्योर्ड नहीं होता फीस सेंटर में। दूसरा हमारा जो आईटी का बिजनेस है तो ये भी अब आप प्रॉफिट मार्जिन इतना कम है कि हम घर लेके जाएंगे या इंश्योरेंस कंपनियों को देंगे। ये बहुत तीन किस्म का इसमें जो है ना वो प्रॉफिट होता है। ठीक, इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रॉफिट नहीं है। आपकी गवर्नमेंट से एक तो डिमांड ये है, आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको खोला जाए। बस यही हमारी डिमांड है। आज हम सड़कों के ऊपर फिर रहे हैं, सुबह को आते हैं, रात को चले जाते हैं, हमारे पाँव सूज जाते हैं, हमारे पास यहाँ पेशाब करने की जगह नहीं है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कहाँ हम अपने ऑफिसेज में बैठते थे, कहाँ हम रुल रहे हैं आपके सामने ही है। किस तरह हमारी हालत देखें। ठीक, नहीं अभी गवर्नमेंट का अभी तक आपसे क्या रिस्पांस है? क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद भी आई, तकरीबन टॉप ब्रास भी आ रही है, शिकायत सेल के जो हैं वो भी अभी हेड आए, तो वो लोग आपको क्या कह के जा रहे हैं और आप मुतमईन हैं हुकूमत जो अभी तक आपसे बात कर रही है, निगोशिएट कर रही है? मुतमिन तो हम तब होंगे जब हमें कुछ दिखाया जाएगा। अभी तो वो कमेटियाँ चल रही हैं, उन कमेटियों की क्या रिपोर्ट्स आती हैं उसके बाद पता चलेगा कि क्या बनता है। एक मुतालबा आपका हुकूमत से ये भी है कि जितना भी आपने कहा कि इंश्योरेंस हमें देते नहीं है, आइंदा आने वाले वक्तों में इंश्योरेंस भी दी जाए ताकि इतना बड़ा नुकसान आपको एकदम एक धचका जो लगे वो ना हो। इंश्योरेंस भी दे, और ये भी हमारा मुतालबा है कि कुछ लोग अगर बैंक से कुछ लोन लेना चाहते हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएं और उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। और ताजर इंशाअल्लाह ताला किसी का पैसा लेके नहीं भागता। इस वक्त मुश्किल वक्त से निकल के वो सब लुटा देगा। ये हमारी यूनियन की तरफ से भी गारंटी होगी। ये खड़ा होने के लिए हेल्प अगर गवर्नमेंट करे, माँ का किरदार अदा करे,
वही हम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, Thank you. आपके वक्त का। मियाँ अतीक साहब, मलिक कलीम साहब और दीगर ताजरों से आपने बात की और उनकी आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। अफसोस की बात यह है कि सब इस वक्त परेशान हैं और हुकूमत से यही कह रहे हैं कि जितना बड़ा नुकसान हुआ है इसको मज़ीद मत बढ़ाया जाए और फौरी तौर पर इसको सीरियस लेके इस प्लाजे को ओपन किया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोग पुरुम्मीद हैं, वो हुकूमत से भी पुरुम्मीद हैं कि हुकूमत अगर डिलीवर करने के लिए आए तो उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका रोज़गार जो है वो शुरू हो। हुकूमत को इसको बड़ा सीरियसली देखना होगा। ये ताजिर बहुत मुश्किल से कोरोना की सूरत हाल में भी अपने कारोबारों को चला रहे थे, यहाँ पे ये सानिया हो गया। अगर हुकूमत थोड़ा सा इन पर नज़रसानी करे तो ये पाकिस्तान को दोबारा से वो रेवेन्यू भी दे सकते हैं और अपने कदमों पे खड़े भी हो सकते हैं। साथ ही अपने मेज़बान सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।